اس عورت کے شکم میں جو بچہ تھا، چونکہ اللہ والے تھے، ان کی گواہی اس بچے نے دیا تھا. جو بچہ تھا پیدا ہوا، اس نے وہ گواہی دی تھی کہ نہیں جناب جریس کی غلطی نہیں ہے، اس عورت نے کسی چرواہے سے غلط رشتہ قائم کیا، اس کی بنیاد پر اس کو یہ حمل ہوا ہے، یہ اس کا لڑکا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، ان کو یہ ذلت اٹھانی کیوں پڑی؟ ایک اللہ والے تھے، ان کو ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ماں کی اطاعت نہیں کیا. جی جی بے شک. اپنے ماں کی فرمانبرداری نہیں کیا، اپنے ماں کی جواب نہیں دیا، اس کی وجہ سے ان کو یہ ذلت اٹھانی جی پڑی. تو بہت بڑا مقام ہے میرے دوستو ماں باپ کا. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حاضرین گرامی، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں دوست ہی لیجیے، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب. یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے جن کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہے، یہی اللہ والے ہوتے. ہر آدمی اللہ والا نہیں ہوتا. اب تو بہت سارے دعوے دار حضرت، جاہلوں کی ایک جماعت کی جماعت ہے. ہر گاؤں میں آپ کو پیر مرید کم، پیر زیادہ ملیں گے. یقین مانیے گا کہ ایسے ایسے پیر آئیں گے کہ آپ دیکھ لیجئے گا تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. جو اصل پیر ہوں گے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے کہ صحیح یہ اصلی والے یہ ہے کہ یہ ہے. مطلب اصل کی پہچان ہی ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. اصل پیروں کی پہچان ہم کھوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اصل پیر کی پہچان یہ ہوگی، شریعت سے روگردانی نہیں ہوگی، تقوی، طہارت، پاکیزگی اس کے اندر پائی جائے گی. یہ صحیح طریقت پیری مریدی کا صحیح طریقہ یہی ہے. لیکن آج کی عوام جانتے ہو کیا چاہتی ہے؟ پیر ایسا ہو جو نہ نماز کو کہے نہ روزہ کو کہے. نماز کو تو بالکل نہ کہے، چاہے وہ جو اتنا کہے. سمجھے؟ ایک مجمع لگا ہوا تھا اور ایک مولانا صاحب ایک پیر کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور مولوی صاحب تعریف کر رہے تھے کہ ہمارے پیر تو بہت پہنچے ہوئے، بڑا قابل ہے. ایک جاہل بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، کھڑا ہو گئے، تمہارے سے زیادہ تو ہمارے بہت قابل رہے. تمہارا کہاں رہے؟ کہیں کا ہے؟ ارے کہیں ہمارے پیر جو ہے 12 سال پہلے وضو بنائے تو 12 سال تک ان کے وضو ہی نہیں ٹوٹے، اتنا قابل رہے. تو مولوی صاحب غصے میں کرے، بیوقوف، تیرے پیر نے جب کبھی وضو بنایا ہی نہیں تو ٹوٹے کیسے؟ ٹوٹتا تو اس کا ہے جس نے بنایا ہوتا ہے نا. تو ایسے ایسے جاہل ہیں، ایسے ایسے جاہل پیر، جاہل مریدوں کا سلسلہ ہے کہ جو ہمارے آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں، دیکھیے یہ عالم دین ہے، ایک پیر ہیں، پیر زادے بھی ہیں. آپ ان کی شہرت یافتہ زندگی کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ان کو تو کم جانتے ہوں گے، لیکن ان کے والد کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو بہت قریب سے جانیں گے. ایسے لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. اب یہ جانیں گے نا طریقت و شریعت کیا ہے. اور جاہل پیر جانتے ہو، کہا تو شریعت اور طریقت میں بڑا فرق ہے. ہمارا مولوی کے تو وہ بیٹھ گئے نہیں تھے. جاہل آدمی جو جاہل پیر ہوتا کہتا ہے ہماری اور مولویوں میں کبھی نہیں بیٹھی ہے، ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا ہے. اور جہاں کوئی مولوی آتا ہے تو وہاں جاتا بھی نہیں. جہاں کوئی مولوی آتا ہے، اب لوگوں کو، عوام کو بہکاتا ہے. یہ جاہل پیر عوام کو بہکاتا ہے کہ مولویوں سے ہماری کبھی نہیں بیٹھتی. یعنی ان جاہل لوگوں کے دل و دماغ میں علماء کے خلاف یہ ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسی باتیں ڈال دیتا ہے تاکہ عوام علماء سے ناراض رہے، متنفر ہو جائے، علماء سے محبت نہ کرے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولائے روم جانتے ہو؟ مولائے روم نہیں جانتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے حضرت. مولائے روم درس دے رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور اتفاق سے حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے عالم تھے، پیر تھے، ان کا گزر ہوا.
लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी मौलाना रूम में और ये शम्स तबरेज़ में। तो ये दर्स दे रहे थे बच्चों को, और उस जमाने में हाथ से किताबें लिखी जाती थी। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों को अगर आप मुताला करें तो बड़ी नसीहत आमेज किताबें उन्होंने लिखी। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह गए तो तमाम किताबें लगी हुई थी, तो इन्होंने देखा और देखने के बाद पूछा, ये चीज पढ़े लिखे लोग होते बुजुर्ग, आज की तरह जाहिल नहीं होते थे। लड्डू सा, कमंडल सा, डंडे सा, मंडे सा, कबड्डी सा, ये सब पीर नहीं होते थे। पीर अल्लाह वाले पढ़े लिखे लोग पीर होते थे, काबिल होते थे। ये चीज तो मौलाना रूम ने कहा, नबी जानी, ये वो चीज है तुम नहीं जानते। ये समझे कि कोई जाहिल आदमी आया हो, इसको क्या मालूम कि मैं तो आलिम हूँ, अपने दौर का बहुत बड़ा काबिल आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। हजरत बैठे थे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, बगल में घाव था, सारी किताबों को उठाया, उठा करके सब उसी में डाल दिया। जितनी लिखी थी हजरत किताबें मौलाना रूम में, सारी किताबों को पानी के गड्ढे में डाल दिया। तो ये बिगड़ गए। अरे अजीब पागल आदमी है, इसने तो हमारी उम्र भर की सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। सारी किताबों को जो हाथ से कच्ची स्याही से लिखी गई थी, ये सारी की सारी बेकार हो गई। बात गुफ्तगू ऐसे चलती रही तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ डाला और हाथ डाल करके सारी किताबों को बाहर निकाल के रख दिया। एक कतरा भी पानी किसी किताब पे नहीं, जैसे की तैसे वैसे की सारी किताबें मौजूद थी। तो मौलाए रूम ने फरमाया, ये चीज ये क्या है? तो उस वक्त शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यानस्तु नमिदानी, ये वो चीज है तुझे जो तू जिसे नहीं जानता है। मेरे दोस्तों, कहना मकसद यह है, उसी वक्त हजरत मौलाए रूम ने अपनी मसनवी शरीफ में एक शेर लिखा था, मौलवी हकीम रसूल मौलाए रूम का गुलाम शम्स तबरेज़ नशर। वही मौलवी उस वक्त तक मौलवी हो ही नहीं सकता है जब तक कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुलाम न हो जाए। मैं शाहिल मक्कारों पीछे पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं हमारी और वलियों में, हमारी और उलमा में नहीं बैठती है, वक्त के सबसे बड़े जय्यद आलिम ने ये बात बहुत पहले कह दिया था कि आलिम उस वक्त तक आलिम हो ही नहीं सकता है जब तक कि किसी वली का वो गुलाम न बन जाए। सुभान अल्लाह। बेशक झूठे नारे लोगों को बरगलाते रहते हैं, झूठी कहानियां सुना सुना कर उलमा के दरमियान और जाहिलों के दरमियान ये जाहिल पीर जो है पहुंच पहुंच करके लोगों को बरगलाते हैं। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, भोले भाले मुसलमानों, अगर किसी के दस्ते हक परस्त में बैत होना चाहते हो तो किसी आलम दीन, सुन्नी सही अकीदा, पढ़ा लिखा, तहजीब याफ्ता, शरीयत का पक्का और जो नमाज और रोजा का पाबंद हो, ऐसे लोगों के हाथों में जब हाथ दोगे तो इंशाअल्लाह ये तुम्हारी हिमायत करेंगे, रूहानी तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी, हर हाल में तुम्हारी हिमायत करते नजर आएंगे। लेकिन अगर तुमने किसी जाहिल का दामन थाम लिया तो वो भी डूबेगा और तुम भी डूब जाओगे। आज मसला पीरी मुरीदी का बहुत तेजी के साथ गांव गांव चल रहा है। बैठ हो जाओ, बस नमाज ना पढ़ना पड़े, ऐसा पीर तलाश करो जो नमाज के बारे में ना कहे, रोजा के बारे न जाने कैसे इतने सलासिल चले हुए हैं इस इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आज हिंदुस्तान में खासकर सुन्नियों में ऐसे ऐसे पीर पाए जाएंगे जो हमें वो तो खुद डूबे हैं और हमको भी लेके जा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह वाले वो हैं जिनका एक एक पल, एक एक लम्हा याद इलाही से कभी गाफिल नहीं हुआ। ये अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह वाले की शान ये होती है कि जहां कदम रखते हैं, जिस रास्ते से वो गुजर जाते हैं, वो रहगुजर बन जाया करती है। आप देखें आज ख्वाजा के दरबार में, गौसो ख्वाजा के दरबार में नहीं, मखदूम अशरफ के दरबार ले लीजिए, हजरत ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार ले लीजिए, कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी का दरबार ले लीजिए, निजामुद्दीन औलिया का दरबार ले लीजिए, लाखों की तादाद में हर वक्त एक मजमा लगा होता है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि ये कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। इनके अंदर रूहानियत पैदा हो गई है, जो रब का करीब हो जाया करता है, रब का महबूब हो जाया करता है। दुनिया में जिस्म जिस्मानियत के साथ रहे ना रहे, लेकिन उसकी रूहानियत हमेशा जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। वलियों की रूहानियत जिंदा रहे, उसका फुइज़ो बरकत मिलते हैं।
ہمارا خواجہ اجمیر میں ہے، لیکن اگر ہم دل سے محبت کرتے ہیں تو ان کے فیض آج بھی ہم پر ہے۔ ہمارا غوث بغداد میں ہے، لیکن اگر ہم دل سے مانتے ہیں تو ان کا فیض آج بھی ہم پر جاری ہے۔ ہمارا مخدوم کچھوچا شریف میں موجود ہے، لیکن اگر دل سے محبت کرتے ہیں تو آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ روحانیت کبھی مرتی نہیں ہے، روحانیت ہمیشہ زندہ جاوید رہا کرتی ہے۔ میں آپ کو لے چل رہا ہوں حضرت مخدوم صابر کلیری کی بارگاہ میں۔ ایک بار ان کے مرید نے پوچھا، حضرت ہم روح اور روحانیت تو اکثر بولا کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، روح اور روحانیت کا چرچا تو کرتے ہیں لیکن بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے اس مسئلے کو اس دن نہیں بتایا تھا، کسی بنیاد پر اس کو ٹال رکھا تھا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ان کو نہیں معلوم تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مرید خاص کو بلایا، کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دروازے میں باہر سے کنڈی لگا دینا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، اور خادم نے جیسا آپ نے وصیت کی تھی کنڈی لگا دیا، اور کہا کنڈی کا دروازہ اس وقت تک کھولنا مت جب تک کہ غسل کے آثار ظاہر ہوتے رہے۔ کنڈی لگا دی گئی، غسل کے آثار، پانی بہتا رہا نالی سے، کمرے میں جو نالی بنائی گئی تھی اسے پانی جاری تھا، لوگ دیکھ رہے تھے پانی بہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا آنا بند ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جب مخدوم کا دروازہ کھولا گیا تو مخدوم صرف غسل ہی نہیں دیے گئے تھے بلکہ کفن بھی پہنا دیے گئے تھے۔ لوگ کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، غسل بھی ہو گیا ہے، کفن پہنا دی گئی ہے۔ اور ایک وصیت اور کیا تھا، کہا دیکھو میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی پڑھائے گا بھی نہیں، ایک گھڑ سوار آئے گا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب ان کی وصیت کے مطابق دروازہ کھولا گیا، غسل و کفن ہو چکے تھے، جنازہ لے جا کر کے قبرستان میں ایک بہت وسیع میدان میں رکھا گیا۔ وقت کے ولی حضرت مخدوم صابر کلیری کا جنازہ، مجمع لگا ہوا، ایک جم غفور، ایک جم غفیر ہے، ایک ہجوم ہے، جدھر سے دیکھو جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں۔ اب صفیں لگ گئی ہیں، جنازہ بھی سامنے رکھا ہے، امامت کا مسلح بھی بچھا دیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، نگاہیں اس آدمی کی متلاشی ہے جس کی وصیت کی گئی ہے، چاروں طرف یہ نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، دور دور تک آنے والے کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ایک بہت دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، لوگوں کو تسلی ہوئی، لوگوں کو راحت ہوئی، ہو سکتا ہے یہ وہی آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے مخدوم نے وصیت کیا تھا۔ لوگ جب دیکھا اور قریب آیا تو گھوڑ سوار جب قریب آتا ہے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھ کر کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور پھر چلنا ہی چاہتا تھا، مرید خاص آگے بڑھتا ہے اور نقاب کو تھام لیتا ہے اور تھام کر کے نقاب کہتا ہے حضور کم سے کم اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے، حضور اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے، اگر چہرہ نہ دکھائیے تو کم سے کم نام ہی بتا دیجئے۔ کل جب دنیا میرے مخدوم کی تاریخ لکھے گی تو پوچھا جائے گا کہ مخدوم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے، تو میں کیا بتاؤں گا؟ لہذا حضور یا تو نام بتا دیجئے یا تو چہرہ دکھا دیجئے۔ جب اس مرید خاص نے اتنا کہا تو جناب اس گھڑ سوار میں جب اپنے چہرے سے نقاب الٹا تھا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ مخدوم صابر کلیری تھے، اور کہا اے میرے مرید خاص سن، تو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ روح اور روحانیت کا فرق کیا ہے، تو دے جو یہ گہوارے میں پڑا ہی سے روح کہتے ہیں، اور جس کو تو نے گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے دیکھا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے دیکھے گا، اسی کا نام روحانیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ تو میرے دوستو یہ اللہ والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، صرف اللہ والے، ایسا نہیں کہ سب زندہ تو سب ہے، قبرستان میں جاؤ تو وہ بھی جواب دیتے ہیں، لیکن روحانیت ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آج ہم آپ پورے ظالم میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے مسلمان سنی بھائیوں، آج ہماری مائیں بہنیں مزاروں پہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں،
मैं तो कहता हूँ अगर दिल में अकीदत और मोहब्बत हो तो गौसो ख्वाजा से मोहब्बत हो तो तुम अपने घर के तहखाने के अंदर अगर तुम हाथ उठा करके दुआ करोगे, ख्वाजा मेरी मदद फरमा, गौस मेरी मदद फरमा, ए मखदूम मेरी मदद फरमा, तो कसम खुदा की ये रूहानी मदद तुम्हारे पास आ जाएगी। बेशक। लेकिन आप तो जब तक यही है ना तब तक मसले नहीं हल होता। कोई फीता बांधेगा, कोई चूड़ी बांधेगा, कोई धागा बांधेगा, ये सारे मामला कहाँ है सुन्नी मुसलमानों? ये सारे मामला हमारे माहौल, हमारे समाज, हमारे माशरे में पाए जाते हैं। अगर कोई शौहर मना कर देना तो ठन जाती, तुम का जानो फलनवा के अम्मा करे हो के बेटवा सही होगा, तुम का जानो वो के अब्बा मानत नहीं रहे, गए हुआ माने लगे। ये सारी खुराफातें हमारी माँ बहनों के ज़हनों में पड़ी हुई है। मेरी माँ बहनों, ये कड़वा सच मैं तुमको बता रहा हूँ, कसम खुदा की, तुम्हारा माना ही पर्दा के होते हैं, औरत के माने ही पर्दा के होते हैं। और तुम आज बेपर्दा मेलों में, बाजारों में, होटलों में, चौराहों में नजर आती हो। आज हमारी और आज तुम्हारी इज्जतें आबरू महफूज किस लिए नहीं है? इसीलिए इज्जत व आबरू महफूज नहीं है कि तुमको ये दरिंदे, ये भेड़िए अपनी निगाहें फाड़ फाड़ करके अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते। जी बेशक। सही बता रहा हूँ मेरी माँ बहनों, बुरा ना लगे, ये कड़वा सच है। एक और मैंने बताया ना कि एक औरत अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी में पहले मंजिला से दूसरी मंजिल पर नहीं आई तो अल्लाह ने उसके माँ बाप की बख्शिश कर दी। अपने वालिदैन, अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी में मेरी माँ बहनों जिंदगी गुजारो और इस बात को अपने दिल में ताहिया कर लो कि आज मेरा शौहर किसी का बेटा है, इसके माँ बाप हयात हैं और मैं इसके साथ अगर बदसलूकी करती हूँ तो कल मैं भी किसी बेटे की माँ बनूंगी, मेरी भी बहू होगी, यही हाल होगा, यकीन मानिएगा। ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी सजाएं दुनिया में अल्लाह ताला देता है और खास करके वालिदैन के नाफरमान लोगों की सजा दुनिया ही में मिल जाती है। अगर किसी ने अपने माँ बाप को सताया, परेशान किया है तो दुनिया में उसकी औलादें उसके साथ ऐसा करेंगी। और मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारो और हमेशा तनी तना रखोगे तो यकीन मानो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका शौहर उससे नाराज रहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। सही बता रहा हूँ मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए जायज काम में, ऐसा नहीं कि तुमसे कहा चलो मेला चली और तुम ना जाओ, नाराज हो जाए तो हमारा ना हो कुछ डराओ ना। सही बता रहा हूँ। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं, बैठो पीछे चले, आज मेला है, आज उर्स है, आज वहां नौटंकी है, चलो साथ। अगर इसमें नाराज हो जाए तो आपको कुछ नहीं होगा बल्कि सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी जायज काम के लिए आपसे कहें और आप उसको अमल में ना लाएंगी, उससे अगर ये नाराज रहते हैं तो यकीन मानिएगा कि अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानतें होती हैं। मेरी माँ बहनों, जिस तरीके से बाप बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, वैसे ही औरत की जन्नत अपने शौहर की अताअत व फरमाबरदारी में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आज तनी तना का मसला ऐसा है ना भैया, सुनो, एक पीर साहब थे, वली थे अल्लाह के, और उनकी औरत हमेशा ऐसे रहा करती थी। पीर साहब बड़ी कोशिश करें कि किसी तरह से ये राजी रहे, माने, बुराई ना करे। अक्सर आपने देखा होगा अच्छे लोग, दो में एक के अच्छा होता है, नरम गरम थोड़ा बहुत होता है। तो पीर साहब बहुत कोशिश करें कि ये हमारी मुखालफत में ना रहे, हमारी बात माने। तो इन्होंने अपनी एक करामत से जाहिर किया। रात में बिस्तर लगा हुआ था, चारपाई, और ये हवा में अपनी करामत के जरिए से हवा में उड़ रहे थे। तो औरत इनकी लेटी हुई थी, बाहर देखा, खुश हो गई, कहा ऐसा मर्द होना चाहिए हवा में उड़ता हुआ। तो कहे तुम नहीं जानते कौन उड़ रहा था? कहे जो भी उड़ रहा है बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा अल्लाह का वली था। अरे कहीं वो जानो तो कौन है? कहीं वो हम ही ना रहे। तुम रहे वही टेढ़े टेढ़े उड़त रहे। बुग़्ज़ उसके अंदर इतना बड़ा था अपने शौहर से। तो वैसी भी मेरी माँ बहन, जब अपने का आपको बता दिया तो टेढ़े टेढ़े उड़त रहे। मतलब नफरत ऐसी होती है औरतों में अपने शौहर के खिलाफ। मेरी माँ बहनों, ये कड़वा सच है, बुरा नहीं मानिएगा। अपनी शौहर की अताअत व फरमाबरदारी करो, यकीन मानो। एक बुजुर्ग ने अपनी वालदा से कहा कि माँ, हमारे हाथों पर कई लाख लोग मुसलमान हुए, कई लाख लोग मुसलमान हुए। तो माँ ने कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं है,
कहा फिर, कहा ये मेरे दूध का कमाल है, मैंने जब भी तुमको दूध पिलाया था बावजू होकर के पिलाया। सुभान अल्लाह। यकीन मानो मेरी माँ बहनों, अगर तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ करके दूध पिलाओगी और नमाज पढ़ते हुए पढ़ने के बाद दूध पिलाओगी, कुरान की आयतें सूरतें पढ़ करके दूध पिलाओगी, तो यकीन मानिएगा ये बच्चा हाजी नमाजी आलम दीन मुफ्ती शरा बन करके सामने आएगा, समाज माशरा के भी काम आएगा, तुम्हारे भी काम आएगा। अगर तुमने लोरी में गाना सुनाया, मोबाइल के जरिए से गाना सुनाया, टीवी दिखा करके दूध पिलाया और गलत बातें बतला करके दूध पिलाया, तो ये बच्चे जानते हो क्या है, नचनिया गवैया से ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे। आज हमारे समाज माशरे का कितना गंदा हाल है। कहीं मोहल्ले में बारात हो जाए, कसम खुदा के ऐसे ऐसे नौजवान अजीब अजीब ढंग से नाचने का ढंग तलाश लेते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए वजू बना लेते हो? नहीं मौलाना साहब ये तो नहीं देखा, इसको नहीं जानता, इसको नहीं पढ़ा हमने। और वो कहाँ पढ़ा जाता है जो ठुमुक ठुमुक के नाचते, कूद कूद के नाचते हो। अरे नौजवानों, डरो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जिस रब ने हमें आपको, ये जानते हो क्यों होता है? जब इंसान की रूह बीमार हो जाती है तो सारी बुराइयां समाज में फैलती है। समझे भैया, इंसान की रूह बीमार हो। अब आप सोचेंगे यार जिस्म तो बीमार होते हुए सुना है ना, जिस्म की बीमारी तो सुना है, रूह की बीमारी का पता कैसे चले? हमारे उलमा फरमाते हैं जब जिस्म बीमार होता है तो आदमी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जिस्म बीमार होता है तो दुनिया का तबीब इलाज करता है। जिस्म के अंदर बीमारी लाहिक होती है तो कोई हकीम और डॉक्टर उसके इलाज करता है, लेकिन रूह की बीमारी का पता कैसे चले? पैर में दर्द है, पता चला दवा ले आए, पेट में दर्द है, पता चला दवा ले आए, बुखार है, दर्द है, दवा ले आए, सर में दर्द है, दवा ले आए, लेकिन रूह की बीमारी का कैसे पता चलेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि इंसान वमा खलकुल जिन्ना इल्ला लियअबुदून का मुकल्लफ बना करके भेजा गया है। अगर ये उसके बरखिलाफ कर रहा हो तो समझ लो उसकी रूह बीमार है। अगर ये समाज में फितना फैला रहा हो तो समझ लो उसकी रूह बीमार है। अगर अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी कर रहा है तो समझ लो उसकी रूह बीमार है। अगर खानदान के साथ बेमुरवती कर रहा है तो समझ लो उसकी रूह बीमार है। और जब इंसान क्या जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अगर इंसान की रूह बीमार हो जाए तो कमली वाले का सहारा लेना पड़ेगा। ए मुसलमानों, अगर रूह बीमार हो जाए तो कमली वाले की बारगाह की तरफ रुजू कर लो, कसम खुदा की रूहानियत अता हो जाएगी। सुभान अल्लाह। रूह बीमार होती है तो आदमी शराबी होता है, रूह बीमार होती है तो जुआड़ी होता है, रूह बीमार होती है तो लड़ाकू होता है, रूह बीमार होती है तो नचनिया गवैया होता है। अगर हमारे समाज माशरे में ऐसे लोग नजर आए तो समझ लो कि इनकी रूह बीमार है। जिस्म नहीं बीमार है, रूह बीमार है। उसका इलाज वाहिद यही है, ऐसे आलम दीन जो बैठे हुए हैं इनके दस्ते हक परस्त पे बैठ करो और इनकी बारगाह में जाओ, जानवे अदब तय करो, कहो हुजूर हमने ये गलती की है, आप उसका कोई इलाज बता दीजिए। कसम खुदा ये बता देंगे तुमको कि तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, सारी बीमारी दूर। लेकिन नमाज तो ना कहो, यही तो सबसे बड़ा खतरा है। सही बता रहा हूँ, अगर नमाज के बारे में गांव में मोहल्ले में तकरीर कर दो तुम्हारा नंबर कटा। सही बता रहे हैं कि उनका लावत हुए नमाज लेके लाओ, कुछ बताते नहीं ना। हाफिज इलियास साहब, अगर नमाज की बात करो और उनसे दीन की बात करो, मस्जिद में जाने की बात करो, मदरसे में आने की बात करो, आएंगे, शर्त है आएंगे, लेकिन कुछ करवे ना। हाफिज मुर्तजा ने दावत दी होगी बहुत सारे लोगों को कि आइएगा। कुछ लोग मगरिब से पहले आ गए होंगे, कुछ लोग मगरिब के बाद आए होंगे, लेकिन कहे होंगे कि मस्जिद में जावे ना, नहीं गए होंगे, अड़ियान बैठे रहे होंगे इस वजह। सही बता रहा हूँ, खाना भी खाया होगा जम के, उसका भी हक नहीं अदा किया कि मदरसे के ग्राउंड में बैठे हैं, सामने मस्जिद है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, मस्जिद न जाने कितनी बार इसमें मगरिब में भी आवाज आई होगी, हैया अलस सलाह आई होगी ना, ईशा में भी हैया अलस सलाह आया होगा, जू तक ना रहेंगी होगी कि चले तो जाए। नमाज से इतनी नफरत क्यों करते हो यार? जबकि हम सही मानों में अल्लाह ने हमें अपनी इबादतों बंदगी ही के लिए पैदा किया। जी बेशक। यकीन मानिएगा, वमा खलक़तुल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हम इंसानों को, जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या इबादत? मैंने एक मरतबा कहीं बताया था ना कि वो ये नमाज के बारे में, वो हजरत अल्लाह के नबी जब मेराज में गए तो कितने वक्त की नमाज मिली थी? 50 वक्त की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे
पांच पांच कम करवाया था। कितनी मरतबा? 9 मरतबा। 9 मरतबा अल्लाह के नबी गए थे, ये अल्लाह कम कर दे, नमाज बहुत ज्यादा, हमारी उम्र बड़ी कमजोर रहनी पड़ेगी। ये इसी तरीके से 5 5 करके कितनी रह गई? 5 रह गई थी। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी, मैं अपने वादे से हटता नहीं हूं, जा तेरी उम्मत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन मैं रब उसको 85 वक्त का सवाब दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कह दिया जो कह दिया, नमाज में तो कमी कर दिया मैंने, 5 ही पढ़े तुम्हारी उम्मत, लेकिन सवाब 85 का मिलेगा। आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो 1 वक्त की नहीं प्यारे, 10 वक्त की नमाज का सवाब मिलता है। सुभान एक मौलाना साहब इसी तरह तकरीर कर रहे थे, मजमा लगा हुआ था, कहा अल्लाह के नबी एक 5 5 मरतबा करके 9 मरतबा गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। एक बुढ़ा बैठा था, हाथ पकड़ा, रे अल्लाह रे। तो लोगों ने पूछा इसको क्या हुआ? अरे कहीं हुजूर एक दाई और जाते, 10 बचे 50 बराबर हो गया, झंझट खत्म हो गया। तो ऐसे भी लोग, तो हमारे ख्याल से जलसे में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। सही बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त नहीं कि और बातें 12:30 11 हो चुके हैं। जलसा वगैरह 12 तक हद होनी चाहिए, बहुत खींच करके। आप यकीन मानिएगा कि ये जलसे, ये जुलूस का क्या मकसद है? हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। हमारे हाफिज मुर्तजा साहब ने अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ, बड़ी जाफिसानी के साथ, दामे दिरमे कदमे सुखने, आपसे हमसे इनसे उनसे मदद लेकर के इस महफिल को रचाया। क्या मकसद था इनका? मकसद क्या था? अपनी शोहरत करवाना? नहीं, कोई मकसद नहीं था। इनका मकसद था जिस दीन मतीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में छोड़ करके ज़ाहिरी तौर पे चले गए हैं, उस दीन की बागडोर हम उलमा के हाथों में दे गए हैं। तो हम उलमा की जिम्मेदारी बनती है गाहे बगाहे अपनी कौम को, अपनी कौम को, अपने माशरे को दीन की बातें बताते रहे, ताकि ये रास्ते से गुमराह ना हो। सिर्फ यही मकसद होता है इसके। लेकिन आज तो यहाँ लोगों ने मकसद दूसरा बना रखा है, जो सबसे ऊंचा शायर हो, चाहे नजराना जो लिए, और जो खूब हाथ पैर फेंक फेंक के पूरे स्टेज पे तकरीर करे, वैसे मौलवी को लाना चाहिए। सही बता रहा हूँ, नजराना चाहे जो ले, लेकिन हाथ पैर पटके मैं कोई तोड़ दिए। हाँ सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे वली को होना, ऐसे मौलाना को लाओ, बात समझ में आए ना आए, लेकिन आवाज अच्छी लगना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। ये मेरे, मैं तो ऐसे उलमाओं से कहता हूं कि कल मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा, रब तबारक व तआला पूछेगा, मेरे नबी की उम्मतियों, तुमको मेरे मुस्तफा ने दाई बना करके भेजा, दावत का काम दे कर, दावत की जिम्मेदारी दी थी, तूने वजू का तरीका किसको बताया, नमाज पढ़ने का तरीका किसको बताया है? बताया किसी? ये तो गांव के मौलवी इलियास साहब मिल जाएंगे, मुर्तजा मिल जाएंगे, मेहदी मिल जाएंगे, असलम साहब, जान मोहम्मद साहब, हमारे कारी इरफान साहब, ये सब बताएंगे। लेकिन वो जिनको तुमने 50,000 दे के धय झटकी झटका सुना है, एक भी समझ में नहीं आता। यकीन मानो, ये कड़वा सच मैं बता रहा हूँ। पैसा तो दे दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आएगा। लोग सुबह पूछे क्या हो, बड़ा ऊंचा जलसा, हाँ बड़ा कामयाब, बहुत कामयाब मौलाना, बहुत धांस के बोलते, ऐसा मौलाना होना। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि कुछ बताएं, नहीं, बस धांस के बोले, है कि नहीं? ये हालात है हमारे समाज माशरे के प्यारे दोस्त। बदलो, अपने सोच को बदलो। अपने आप को चाहिए कि ये दीनी मदारिस जो है कौम के लिए रोशनी का एक मीनारा, समझ रहे हो? दीन के लिए, हमारी कौम के लिए रोशनी के एक मीनारा है, और इसकी रोशनी जहां तक जाती है, दीन की रोशनी, और दीन की रोशनी में चलने वाला आदमी कभी गुमराह नहीं होता। याद रखिए मुसलमानों। तो हमारे आपके अंदर दीनदारी जब तक नहीं आएगी, हमारे समाज और माशरे में सास बहू के झगड़े होते रहेंगे, बाप बेटे से लाठी चलती रहेगी, और माँ बेटी में झगड़े मचते रहेंगे, मियाँ बीवी में हमेशा इत्तेफाकियां होती रहेंगी, सिर्फ जिहालत की बुनियाद पर। अगर इल्म होगा, इल्म की रोशनी होगी, तो एक दूसरे के अखलाक व आदाब को समझेंगे, एक दूसरे के किरदार को समझेंगे, एक दूसरे के हुकूक को जानेंगे। आज तो हमें पता ही नहीं कि हमारे बेटे का बाप पर क्या हुकूक है, बाप का बेटे में क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, खानदान का क्या हक है, माँ बाप के क्या हक, कोई पता नहीं। बस इतना पता है कि जिधर से आओ धीरज जाओ। माँ बाप अगर कहेंगे बेटवा देर में का करे हो, अकड़ जाती, अगर कहें तू रात में इतनी देर ना हो,
तो हार कहा जाता है। अरे बड़े बड़े उल्टे गंदे अल्फाज बकते हैं प्यार, है ना। और माँ बाप का मकसद जानते हो क्या होता है? सिर्फ मकसद ये होता है मेरा बेटा कहीं भी हो, किसी हालत में भी हो, वो सुरक्षित हो। उसका मकसद यही होता है और कुछ नहीं होता। तुमसे दौलत कमाने, ये जानते हो, ये तुम्हारी दौलतें, तुम्हारे मालो असबाब सब तुम्हारे बाप के। तुम ये मत समझो कि मैंने कमाया तो मेरा है। समझ रहे हो ना? जितनी भी मालो दौलत, ये जरो जवाहिरात हैं हमारे आपके पास, ये सब हमारे माँ बाप के, हमारे वालिदैन के। तो आज तनको ले लेते ना तो झगड़ा हो जाता, तुम कैसे छुए हमारी कमाई। अरे मैं कहता हूँ शरीयत की रोशनी में तुम्हारा माल सब तुम्हारे माँ बाप के। अगर माँ बाप तुमसे कुछ भी ले ले तो यकीन मानिए तुमसे उफ तक नहीं कर सकते। ये मसला है प्यारे। और यहाँ तो माँ बाप को बड़े मुश्किल से निकलता है तो 10 निकल हैं, और अपना लड़का अगर मांगेगा तो कहे 50 ले लियो, है ना। ये हालात। बीवी से झगड़ा हो, बीवी 500 से कम ना ले तब जाओ, और माँ ने अगर मांगा है तो कहे 50 है। ये हालात है हमारे समाज माशरे। कहाँ तक गिनाओ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कहता हूँ जिस माँ बाप के लातादाद एहसान है हम पर, उस माँ बाप को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो यकीन मानिएगा कि हमारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। कान खोल करके सुन लो मुसलमानों, सुन लो, रब और रसूल के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो सिर्फ माँ बाप का है। माँ बाप का मर्तबा है। अल्लाह और नबी के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा मर्तबा है तो माँ बाप का है। अगर माँ बाप खुश रहेंगे तो गौस भी खुश है, माँ बाप खुश है तो ख्वाजा भी खुश है, माँ बाप खुश है तो मखदूम सिमला भी खुश है, माँ बाप खुश है तो सारी कायनात खुश है। माँ बाप ने जिसको दुआ दे दिया है, कसम खुदा की वो दुनिया भी उसकी खुशहाल है और इंशाअल्लाह आखिरत भी खुशहाल है। अगर जिसके माँ बाप ने बद्दुआ कर दिया है तो कसम खुदा की दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। मैंने हजरत जरीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा सुना। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप को कभी बद्दुआ मत लेना, इतना जरूर याद रखना। माँ बाप की बद्दुआओं से बच्चे रहना, दूर रहना, ताकि हमारी इस्लाह और हमारा दीन, हमारा ईमान तो बचा रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चंद बातें थी जो हमने आपके गोशे गुजार कर दी और आपके सामने एक मुदल्लल और बहुत ही मुफस्सल तकरीर हमारे मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मदनी अशरफ साहब क़िबला मद्दसिल अली, जिनकी ज़ियारत अपने माथे की निगाहों से कर रहे हैं आप लोग जाइएगा नहीं भाई, इसलिए कि हर आने वाले के बाद 10 आदमी ज़रूर चले जाते हैं। हर आने वाले हाफिज़ जान उम्मत पे पूरा भरा, तो मैं आया कई कुर्सी खाली हो गई, अभी मैं उठूंगा तो फिर कई कुर्सी खाली हो। ये मत कीजिए, ईमानदारी से, मतलब अपने आलिम का ईमानदारी के साथ साथ दोगे तो इंशाअल्लाह कुछ आपको मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।